Thank you, Sanjay sir, for the wonderful introduction you have given to me. I have been in High Court since last 7 years. So I'll be talking about the legal rights, and I'm honored that during this auspicious time of Navratras, I'm talking about the rights of a girl child, which is, it make many difference in our lives. And this is irony also. We worship goddess, and now we are talking about their life, their rights and gaps we created. So first of all, happy International Girl Child Day to everyone. And the saying which the maker of the Constitution, our Constitution, Dr. B.R. Ambedkar ji said, we measure the progress of a community by the degree of progress with which women have achieved. So in India, we can say we are quite developed in that area. Now, if you see past 5 years or 7 years, I have seen many cases I can't even tell. This is the next, एक अलग से पूरा वेबिनार हो जाएगा if we discuss the cases. So I can say कि ठीक है हम बहुत अच्छी पोजीशन पे आ चुके हैं, but still we are lacking behind the developed countries. So a country that empowers a woman empowers every individual, like Nilakshi ma'am and Manika ma'am, and Sapna ma'am already said so much. So I would quickly go to all the legal rights, which is my personal attention and my personal topic. So with this, I would like to start that the birth of a girl child is still not welcomed in many parts of the country, which we all know. I'm not talking about us, but yes, there are a major chunk of persons who does not, celebrate the birth of a girl child. It is said that in India, a girl is discriminated against her right from womb to tomb. I hope कि सबको समझ आ रहा होगा इस चीज में कि right from the conceivement of a girl child till her death, there are enormous ways and बहुत सारी situations में they are being discriminated. There are chances उनके health पे neglect होता है, उनके well-being पे, education पे तो बहुत ही होता है. Because अभी एक theme आया है digital divide. We should not do digital divide of a girl child. So ये थीम इसीलिए आया because अभी इस टाइम पे डिजिटल डिवाइड बहुत ज्यादा है. इफ वी हैव वन स्मार्टफोन, वो हमेशा एक मेल चाइल्ड के पास होगा एंड ही हैज टू कंप्लीट हिज क्लासेस. देन वी कैन टॉक अबाउट अ गर्ल चाइल्ड कि ठीक है इनकी क्लासेस भी करा देते हैं इन मेनी पार्ट्स, इन द मेजर पार्ट्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिटीज बट यस इन आवर रूरल एरियाज. So since it's International Girl Child Day, I would like to share my inputs on the legal right that a girl child in India requires, and she has a legal right, but she can't claim or she is unaware of. So I would like to ask some questions if anyone wants to answer, the students. What is the legal age of marriage of a girl? You can type in the chat box. Ma'am, minimum 18. Yeah, true. And do you know there's a law right now which is pending before the court that a bill is passed कि उसको 18 से 21 कर दिया जाए, the minimum age of girls. But मुझे लगता है कि एक बार girls से भी पूछना चाहिए what they want when they want to get married, right? Why is there a minimum age criteria? Like नहीं, अभी 21 तो है, so let's get her married. It's now time for us to decide when we want to get married, right? So for taking further, thank you so much. बहुत ज़्यादा questions के answers आ गए. 23 नहीं है, boys की age 21 है. Sorry, the one person has written 23. It's 21. So first right is right against female feticide. As female feticide, I would like to say that this is the killing of a female fetus inside the womb itself. मतलब पैदा होने से पहले ही आपने उसकी राइट्स तो खत्म करना चाह रहे. So मैंने पहले भी यही बोला था that it's the rights of a girl is neglected right from the womb to tomb. The womb तो it's first right that
killing of a female fetus in the womb itself rose to an all-time high. And it is shocking that even now in 2020, it is being discovered that बहुत ज़्यादा female feticide हुई है and लोग ऐसे ही छोड़ के भी चले गए हैं. उनके अगेंस्ट बहुत सारे लॉज हैं, बट लॉज तब तक काम नहीं आएंगे जब तक आप उनको क्लेम नहीं करेंगे. हम लोग कोर्ट में जाते हैं, लोग रोते कि अरे हमें तो पता ही नहीं था. तो नेग्लिजेंस इज नो एक्सक्यूज. आपको पता करना पड़ेगा कि आपके राइट्स क्या हैं. एंड आज की डेट में यू हैव टू बी अवेयर एंड यू हैव टू बी सेल्फ सफिशिएंट कि ठीक है मेरे राइट्स ये, मैं ये करने जा रही हूँ. सो नेक्स्ट फर्स्ट इज राइट अगेंस्ट फीमेल फीटिसाइड, विच आई थिंक सबको पता होगा कि ये एक इलीगल है. सेकेंड इज राइट टू एजुकेशन, which Nilakshi ma'am has already said that right to education came in 2009 and it is for every children, but today we are talking about girl child. So yes, it is a gender neutral act, but yeah, if we talk about male and female, so girl child to baad mein hi aayega. Male pehle jate hain school 6 to 14 years ki age mein. So yes, third right is very very important and अभी भी आई डोंट थिंक अभी कोई भी इतना इसको अग्री करेगा दैट राइट टू बी रेज्ड इन अ सेफ एनवायरनमेंट, which is very important. And 2020 and 2021, even if लॉकडाउन था तब भी इतने रेप केसेस, इतना फैमिली अब्यूज, इतना अपने ही गार्जियंस, अपने ही पेरेंट्स, स्टेप मॉम, स्टेप मदर, सबसे इतना ज्यादा अब्यूज आया, इतनी ज्यादा केसेस आए इन कोर्ट्स रिगार्डिंग द अब्यूज ऑफ अ गर्ल और गर्ल और वाइफ और मदर, बहुत ज्यादा आया, विच इज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड कि इतना केसेस. अभी जब लॉकडाउन है, जब कोई बाहर नहीं निकल रहा है, तो घर में भी वो लोग सेफ नहीं है. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट. एंड अगर इस राइट को कोई वायलेट कर रहा है, यू कैन स्ट्रेट अवे गो एनीवेयर, एनी कोर्ट, इवन इफ अगर आप गाजियाबाद में रहते हो, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप दिल्ली में जाके भी कंप्लेन कर सकते हो, कोई आपको मना नहीं करेगा. दिस इज द राइट विच इज अवेलेबल टू अस. And you should all know all these rights. So yes, next is right against abusive family members. ये दोनों rights I guess club कर सकते हैं because ये एक safe environment inside and outside both होता है, inside family, outside family, society. And right against abusive family members, domestic violence act already है इंडिया में, जो कि बहुत ज्यादा मिसयूज भी हो रहा है. मैं ये नहीं कहूंगी कि यूज हो रहा है और मिसयूज नहीं हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, बट मेजर चंक तो यही है कि यूज नहीं हो पा रहा है. एंड लेडीज आती हैं कोर्ट रूम में एंड वो सिर्फ ये बोलते हैं कि नहीं हम तो चाह रहे बाहर ही सेटल हो जाए, आप पैसे दे दिवा के आप कर दो. ये मैं आपको साकेत कोर्ट की बात बता रही हूँ, आप कहीं और तो जाओ मत. दिल्ली जो कि एक एनसीटी है, एक कैपिटल है अपना, वहां पे लोग ये कहते हैं अरे बाहर ही सेटल कर लो, ठीक है इतना पैसा कर देंगे हम लोग, हो जाएगा. एंड द वुमेन इज ऑल्सो हैप्पी टू माई इतना मतलब मुझे बुरा लगता है कि वाई आर यू गोइंग टू बी हैप्पी, मतलब यू शुड कंटिन्यू विद द केस. बट नो, दिस इज द मोस्ट, दिस इज द आयरनी ऑफ आवर कंट्री कि इतने लीगल राइट्स होने के बाद भी लोग कहते हैं कि वुमेन आर नॉट सेफ या वुमेन पीछे हैं. तो आप अपनी राइट्स क्लेम करो, क्लेम तो करके देखो, कुछ तो निकलेगा हल, कभी तो निकलेगा. एंड आई गेस वुमेन ही वुमेन को पीछे नहीं आगे करना चाहिए हाथ पकड़ के. यू कांट पुल हर डाउन, सो यू शुड टेक हर हैंड एंड गो. सो दिस इज द डोमेस्टिक वायलेंस. एंड फिफ्थ इज राइट टू स्त्रीधन. स्त्रीधन आई नो सबको आई गेस पता होगा, जो मैरिड है, जो भी उनका मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी आती है पेरेंट्स से इनहेरिटेंस, वो या फिर खुद की अर्न की भी उनकी खुद की होती है, वो किसी और की नहीं होती है. बट मैंने बहुत देखा है, हमने देखा है, आज तक हम सोच के भी यही आए अच्छा ये आया है ना तो तुम इसे रख दो, फिर देखेंगे क्या होगा. तुम अर्न कर रहे हो, इसको हम सेव कर लेते हैं हमारे घर के लिए. नो वन नोज कि आप क्या चाहते हो, राइट. सो दिस द राइट ऑन स्त्रीधन इज ऑल योर्स. आप उसके लिए लॉ है जो कि सिर्फ हिंदूज पे अप्लाई होता है. एंड मुस्लिम्स में ऑलरेडी मेहर है जो आपको मिलती है. सो मेहर इज ऑल योर्स. So Muslim, Hindus, any culture, वो सब rights different law books में different तरीके से हैं, prescribed हैं. Sixth is right to inherit property, जो कि recently आया था कि आप girls भी अपना inherit, parents की property पे inherit कर सकते हैं if they want to, and if parents want to give it to their daughters, they can do so.
Then next is right against sexual harassment at the workplace. ये तो proper एक topic था जिसपे मैंने पहले भी I guess webinar लिया है कॉलेज में ही. This is the prevention of sexual harassment at the workplace. अगर workplace पे कुछ भी होता है, एक कमिटी होती है हर जगह, हर उसमें हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कमिटी बननी चाहिए एंड बनती है. इट इज अ लीगल थिंग. सो उसमें आप जाके कहीं भी किसी की भी कंप्लेंट करो, अनोनिमस करो, आप अपना नाम मत बताओ, कुछ मत करो, आप सिर्फ बता दो ये बात, तो आपकी चीजों को आगे बढ़ाया जाता है एंड उसको स्पीड अप बहुत जल्दी तरीके से होता है. फास्ट ट्रैक होती है सारी चीजें. ऑल द क्राइम रिलेटेड टू वुमेन बहुत फास्ट ट्रैक होते हैं. सो प्लीज आप उस चीज को करना स्टार्ट कर दीजिए. एंड राइट टू अबॉर्शन, दिस इज द लास्ट राइट आई एम टॉकिंग अबाउट. राइट टू अबॉर्शन एक लीगल है अगर आपकी एक अनवांटेड प्रेगनेंसी है, विच मीन्स कि आउट ऑफ रेप अगर आप प्रेग्नेंट हुए या कुछ भी ऐसा है, तो कोर्ट उसमें डिसाइड करेगा वेदर यू हैव टू कीप दैट चाइल्ड और नॉट. कई बार 18 ईयर से बिलो लेडीज होती हैं जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं एंड इट इज नॉट राइट फॉर देम एंड द बेबी. सो राइट टू अबॉर्शन इज लीगल इन सर्टेन केसेस, नॉट इन एवरी केसेस. So you have to come to court, एक application file करो why you want to terminate. Then it is easier to terminate if that is an unwanted pregnancy and it can cause an injury to the physical or mental health of the mother. So these are the major rights. Rights तो बहुत सारी है, बहुत सारे laws ही laws हैं दुनिया में. But the thing is कि वो on ground नहीं आ पाते. So that is the मतलब